Assalamualaikum students. I am Dr. Zara. Today we are going to revise this topic cell entry, cell entry adaptation, and we will talk about reversible and irreversible cell entry. Kindly mute yourself. ना सबको म्यूट कर दें, स्टूडेंट्स म्यूट नहीं है मेरे ख्याल में सारे, अनम्यूट है ना, म्यूट कर दें। मैंने अभी पास कर दिया, शो होना शुरू हो गया। कहाँ से option? अच्छा, म्यूट कर दें। नहीं नहीं बस ठीक है, म्यूट कर दें, म्यूट है स्टूडेंट, म्यूट कर दें। स्टूडेंट्स के पास आ रही है। When um, normal cell tries to maintain its homeostasis, it maintains its shape, its size, and its structure. Whenever any stress occurs, normal cell try to adopt itself that in that environment. It tries to adopt in that environment. It tries to overcome that stress by adaptation. Which adaptations can these cells can take place? These cells can take hypertrophy can occur in these cells, and hyperplasia, metaplasia, and atrophy. If that cell able, able to adopt that stress, then what will happen that no injury will occur to that cell. But in case of inability to adaptation, what will happen? Cell injury will occur. That cell injury may be reversible or irreversible. If it is mild, transient, it can be reversible. It can reverse and become occurs to the normal cell. But if the injurious stimulus persists and the lethally injured cell is much injured that it can't be reverse itself, then what will happen? The irreversible injury will happen. Where progressive irreversible injury. Irreversible injuries are of two types, that are necrosis and apoptosis. Apoptosis, what is apoptosis? In apoptosis, programmed cell death. सेल की फ्रेगमेंटेशन होगी पार्टिकल्स ऑर्गेनेलिस वगैरह की, प्रोग्राम सेल डेथ होगी. एंड व्हाट विल बी द नेक्रोसिस? इन नेक्रोसिस there will be accidental cell death in inflamed area, sequence of changes that lead to cell death. How cell will react in adverse influences? कोई भी स्ट्रेस हो गया है, कोई भी स्ट्रेस अप्लाई हो गया है हाइपोक्सिया की सूरत में, या फिर कोई बाहर से कोई और स्ट्रेस अप्लाई हुआ है, तो सेल कैसे करते हैं, रिएक्ट कैसे करेंगे? सेलुलर एडॉप्टेशन. सेल विल ट्राई टू अडॉप्ट these cell will try to adopt some things and one try to survive in that environment. That they will do hyperplasia, hypertrophy. Hyperplasia will occur in cells, non-dividing cells.
hyperplasia will occur in dividing cells, hypertrophy will occur in non-dividing cells, atrophy and metaplasia, dysplasia. If that cell is not able to survive, is not able to adopt itself, then what will happen? Injury, reversible and irreversible injuries will happen. In reversible injuries, what will happen? Cell, intracellular edema will occur, fatty changes, hyaline changes, and the pathological pigment accumulation, amyloidosis, and mucoid degeneration. And if that stimulus persists and cell unable to recover itself, then what will happen? Irreversible cell injury and dying, necrosis and gangrene, followed by pathological classification. What are the adaptations? These adaptations are reversible changes. These are the reversible changes. ठीक है? सेल क्या करता है? अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है. What are adaptations? Adaptations are reversible. They can be reversed. Reversible changes in number, that can be in the number of cells, that can be in the size of cell, phenotype, that can be in the appearance of the cell, metabolic activity or functioning of the cells in response to change in their environment. अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्या करता है? चेंज करता है. रिवर्सिबल चेंजेस आती हैं इन नंबर, साइज, फिनोटाइप, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और फंक्शन. They may be physical adaptation, physiological adaptation and pathological adaptation. Physiological adaptation means that are response of cell to the normal stimulus. Normal stimulus, that is any hormonal stimulus, that can be endogenous chemical mediators. And what are the pathological adaptations? Pathological adaptations are responses to cells that allow cell to modulate their structure and function and thus escape injury. सेल क्या करता है? इंजरी को एस्केप करने कैसे करता है? अपने फंक्शन और स्ट्रक्चर को मॉड्यूलेट कर लेता है पैथोलॉजिकल एडाप्टेशन में. लाइक कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफी हार्ट की ब्लड वेसल्स वगैरह में. ठीक है, हार्ट में हाइपरट्रॉफी हो रही है, हाइपरटेंसिव हार्ट है. ठीक है, सेल क्या करता है? अपने आप को अडॉप्ट करता है और दस एस्केप्स इंजरी. हाइपरट्रॉफी, हाइपर increase, trophy, size. Hypertrophy is increase in size of cells and consequently an increase in the size of an organ. Size cells के size increase की है, इसके साथ क्या हुआ? And consequently an increase in the size of an organ. The enlargement is due to an increased synthesis of structural proteins and organelles. टू टाइप्स की हो सकती है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल. ठीक है, फिजियोलॉजिकल में क्या होगी? एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? यूट्रस, ब्रेस्ट. ठीक है, यूट्रस ड्यूरिंग ग्रेविड यूट्रस क्या होता है? ग्रेविड यूट्रस अंडर द हार्मोनल स्टिमुलेशन इट विल इंक्रीज इन साइज. ब्रेस्ट अंडर हार्मोनल स्टिमुलेशन इट विल इंक्रीज इन साइज. एंड इन बॉडी बिल्डर्स में क्या होता है? मसल्स डेवलप हो जाते हैं, मसल्स बिल्डअप करते हैं. वो कैसे होते हैं? वो क्या है? चेंज है फिजियोलॉजिकल. एंड पैथोलॉजिकल क्या है? हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी में. ठीक, ये आपको एग्जांपल है. ठीक है, ग्रेविड यूट्रस की, नॉर्मल यूट्रस. दिस इज द ग्रेविड यूट्रस. इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल रिजल्टिंग इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन. दिस इज द नॉर्मल यूट्रस एंड दिस इज ग्रेविड यूट्रस. You can see spindle shape uterine smooth muscles. These are spindle shape uterine smooth muscle cells from a normal uterus. This is the normal uterus. And what will happen in hypertrophic smooth muscles? They will become large, increase in size. So you can see the size. They are not now a spindle shape. पैथोलॉजिकल किसमें हो रही है? हार्ट में हाइपरट्रॉफी हो रही है इन हाइपरटेंशन. नॉर्मल ये देखिए, आपको लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल की थिकनेस नजर आ रही होगी, मोर देन 2 है. लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हुआ है? अंडर हाइपरटेंशन उसने क्या किया? अपने आप को अडॉप्ट कर लिया और साइज इंक्रीज कर ली है ताकि सर्वाइव कर सके. हाइपरप्लेजिया, hyperplasia, that was hypertrophy, that was increase in size. Hyperplasia is increase in the number of cells in an organ or tissue. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? सेल्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं. इट इज एन एडॉप्टिव रिस्पॉन्स इन सेल्स ऑफ कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन. इट इज एडॉप्टिव रिस्पॉन्स इन सेल्स दैट आर रेप्लिकेटिंग सेल्स में होता है. ठीक है, ए क्रिटिकल रिस्पॉन्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स इज वुंड हीलिंग. ठीक है, ये भी फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया भी हो जाएगा, पैथोलॉजिकल भी हो जाएगा. फिजियोलॉजिकल किसमें हो रहा है हाइपरप्लेजिया?
Physiological proliferation of the glandular epithelium of the female breast at puberty and during pregnancy. Female breast में क्या हो रहा है? Proliferation of glandular epithelium, increase in number of cells हो रहा है during puberty और pregnancy में. ठीक है, ये तो हार्मोनल हो गया. फिजियोलॉजिकल में एक हार्मोनल रीजन है, हार्मोन के अंडर इन्फ्लुएंस में आके सेल्स नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं. एंड वन मोर थिंग इज कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया. कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया किस तरह हो रहा है? That occurs when a portion of tissue is removed or diseased, like the partial resection of liver. लीवर के सेल में एबिलिटी है कि दे रेप्लिकेट, ठीक है, उनमें माइटोटिक एक्टिविटी होती है. तो उसमें क्या होगा? अगर हम liver tissue or liver portion of tissue is removed, then what will happen? Compensatory hyperplasia, that will increase in size by increasing in number of the cells. These both are compensatory and हार्मोनल. किसमें आएगा? फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया में. पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया इन प्रोस्टेट एंड एंडोमेट्रियल. बिनाइन प्रोस्टेट बीपीएच में बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया एंड एंडोमेट्रियम में एंडोमेट्रियल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया. इनमें क्या हो रहा है? पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन. ये आप लोग देख सकते हैं. दिस इज व्हाट इज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. दिस इज नॉर्मल एंडोमेट्रियल. Hyperplasia of the prostate gland, you can see the increased number of cells. You can see papillae, पर्पलिश कलर नजर आएगा. सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं. इसकी वजह से पर्पलिश कलर न्यूक्लियस वगैरह की, न्यूक्लियर क्रोमैटिन वगैरह की वजह से आपको भी नजर आ रहा होगा. पेपिले फॉर्मेशन, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स. दिस इज पैथोलॉजिकल. Atrophy. What are these things? These are cellular adaptations. And third one is atrophy. It is the shrinkage in the size by the loss of cell substance. इसमें क्या हो रहा है? Atrophy, cell का size shrink हो रहा है. Result from decrease. It can be from decreased protein synthesis or increased protein degradation in the cell. It is accompanied in many situations by increased autophagy with resulting increase in autophagic vacuoles. कॉजेज इसकी क्या हो सकती है? वर्कलोड डिक्रीज हो गया. वर्कलोड डिक्रीज हो गया, आप लोग वो चीज यूज नहीं कर रहे, मसल्स को यूज नहीं कर रहे, उससे क्या होगा? श्रिंकेज इन साइज ऑफ द सेल हो जाएगा. लॉस ऑफ इनर्वेशन, नर्व जो से सप्लाई कर रही है उसकी लॉस ऑफ इनर्वेशन हो गई. डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई खत्म हो गई. इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, लॉस ऑफ एंडोक्राइन हार्मोनल स्टिमुलेशन खत्म हो गई है, एजिंग हो गई है. इसमें क्या होगा? सेल का साइज श्रिंक हो जाएगा. You can see atrophy of the brain in an 18 years old. इसमें क्या है? श्रिंकेज हो गई. ये देखिए सेल काय हो गया है. आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर कट नजर आना शुरू हो जाए. एट्रोफी इन ओस्टियोपोरोसिस. ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि उसके एट्रोफी, सेल के साइज श्रिंक और सेल के साइज श्रिंक होना शुरू होता है. मेटाप्लेजिया. Metaplasia it is a reversible change. These all cellular adaptations are reversible, except few in non-dividing cells like in non-replicating cells like हम अभी ये बात कर रहे थे, जैसे atrophy होती है brain की, so that is irreversible. Otherwise, mostly are reversible changes. And metaplasia is a reversible change in which one adult cell type is changed into replaced by another cell type. एक adult cell type है like epithelium है, स्टेमस एपिथेलियम है, वो कोलमनर में कन्वर्ट हो गई है. वन सेल टाइप किसमें कन्वर्ट हो रही है? into another cell type, that is cellular adaptation whereby cells sensitive to particular stress are replaced by other cell type better able to withstand the adverse environment. जो वन सेल टाइप कन्वर्ट हो रही है नेक्स्ट सेल टाइप में, एक और सेल अडल्ट सेल टाइप में कौन सी हो सकती है? वो that are better able to withstand with the adverse environment. जो भी सर्कमस्टांसेस, जो भी इन्वायरमेंट क्रिएट हुई है, कौन सी सेल टाइप में वो कन्वर्ट होगी? दैट सेल टाइप दैट इज बेटर एबल टू विथस्टैंड विद द एडवर्स एनवायरनमेंट. इसमें मैकेनिज्म क्या होता है? रीप्रोग्रामिंग ऑफ प्रीकर्सर सेल्स की हो जाती है, सेल्स की. एपिथेलियल मेटाप्लेजिया. एपिथेलियल मेटाप्लेजिया इसमें क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया. इसकी टाइप्स ये दो होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया एंड एपिथेलियल. एपिथेलियल मेटाप्लेजिया में क्या होता है?
जैसे रिस्पायरेटरी एपिथेलियम में होता है। रिस्पायरेटरी एपिथेलियम की नॉर्मल कोलमनर एपिथेलियल होती है, ठीक है, नॉर्मल कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। सिगरेट स्मोकर्स, हैबिचुअल सिगरेट स्मोकर्स में क्या होता है, ठीक है, क्रोनिक इरिटेशन वगैरह की वजह से हैबिचुअल सिगरेट जो नॉर्मल कोलमनर एपिथेलियम है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सेम इन द केस क्रॉनिक गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स में, क्रॉनिक गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स में क्या होता है, वहां पे नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि लोअर एसोफेगस में होती है दैट कन्वर्ट्स इनटू गैस्ट्रिक कोलमनर एपिथेलियम। आप एसिडिक सिक्रीशन बार बार रिगर्जिटेशन इन लोगों को होती है, ठीक है, बार बार दोबारा से एसोफेगस में आती है, जिसकी वजह से एसोफेगस की जो नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है दैट इज कन्वर्टेड इनटू गैस्ट्रिक कोलमनर एपिथेलियम। You should know that that is converted into another cell type that is better able to withstand that adverse environment. Similarly, myositis ossificans, ये हम एपिथेलियल की पढ़ी, और कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल क्या है मेटाप्लेसिया की, मायोसाइटस ओसिफिकेंस, जिसमें बोन फॉर्मेशन इन मसल्स इन सॉफ्ट टिश्यू। You can see in picture A stratified squamous and schematic diagram of columnar to squamous epithelium। ये columnar है, ठीक है, columnar epithelium आपको नजर आ रही है, इसमें होती है bronchi में होती है, ठीक है, respiratory tract में होती है, that is converted into squamous metaplasia, squamous epithelium। मेटाप्लास्टिक नीचे वाली पिक्चर में मेटाप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एसोफेजियल एपिथेलियम। एसोफेजियल एपिथेलियम कौन सी थी, ठीक है, और stratified squamous that is converted into columnar epithelium। mesenchymal metaplasia that is connective tissue metaplasia, उसमें क्या होता है, एक्स बोन फॉर्मेशन इन सॉफ्ट टिश्यू। बोन फॉर्मेशन किसमें हो जाती है, इन सॉफ्ट टिश्यू, पर्टिकुलर इन ऑन द फोकस ऑफ इन। मेटाप्लेसिया इन लंग्स, लंग्स में क्या होता है, epithelium convert हो गई, one adult type into another। cell injury, cell injury pertains to the sequence of events when cell have no adaptive response। तब होगी जब सेल का adaptive response, या तो सेल में adaptive response ही नहीं है, वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा अपने आप को उस environment के बाद है, और the limits the adaptive capability are exceeded, या फिर वो अपने आप को अडॉप्ट ही नहीं कर पाया, ठीक है, उसकी लिमिट एक्सीड कर गई है, तब क्या होगा, सेल इंजरी होगी। सेल टाइप्स ऑफ सेल इंजरी, अब there are two types of cell injury: reversible cell injury and irreversible cell injury। Reversible cell injury that persists within the certain limits, cell return to stable baseline, cell can return to stable baseline, cell normal cell में convert हो सकता है, सेल के पास ऑप्शन है कि वो नॉर्मल हो जाए अगर स्टिमुलस रिमूव हो जाए या फिर वो अपने आप को अडॉप्ट कर ले। अब if the limits of the adaptive capability are exceeded, then what will happen, then the irreversible injury, when the stimulus causing the injury persists and is severe enough from the beginning that the affected cell die। Irreversible, after irreversible injury cell will die। There are two types of irreversible injury, that are necrosis and apoptosis। causes this is important क्योंकि और ये आप लोग यूएचएस में क्वेश्चन आ जाता होता है, इसलिए मैंने causes किए हैं, ये आप लोग को थोड़ा सा रट्टा ही मारना पड़ेगा। कॉजेज और अच्छी तरह ये आप लोग कर लीजिएगा, ये कॉजेज का जरूर क्वेश्चन आ भी जाता है काफी बार। कॉजेज ऑफ सेल इंजरी व्हाट आर, हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया के क्या रीजन हो सकते हैं, इस्कीमिया, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन ऑफ द ब्लड, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, केमिकल एजेंट दैट में बी ग्लूकोज, पॉइजन, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, फिजिकल एजेंट that are trauma, extremes of temperature, radiation, electric, infectious agents like viruses, bacteria, immunological reactions like anaphylactic reaction to foreign protein. These are the causes of cell injury। Genetic defects, like examples are genetic malformation associated with Down syndrome, nutritional imbalances, protein calorie deficiency, excess of lipids, aging. These are the causes of cell injury and death। What will happen in the reversible cell injury? There will be the reduced ATP. ATP production will be reduced. Cells will not try to survive. There will be reduced ATP, and what will happen to the cell? Cellular swelling will occur। Irreversible cell injury is of two types, that are necrosis that will always be pathological,
necrosis will always be pathological, and apoptosis that may be physiological or pathological both. And this is the pictorial diagram of the reversible and irreversible cell injury. You can see this is a normal cell. Because this normal shape. In what will happen in reversible cell injury? Reversible cell injury will occur due to any stressful environment or any stress hormonal or any other thing. What will happen? Cellular swelling will occur. So you can see this is the cell is swollen. Cellular swelling will occur as well as swelling of endoplasmic reticulum and mitochondria. These are mitochondria and endoplasmic reticulum. Their swelling will occur and membranous blebs are formed. And what will the nuclear chromatin material that is will be a clumping of the nuclear chromatin material. After it will recover, it can if the reversible cell injury, if the stimulus is removed, then cell can recover to the normal cell. But if the stimulus persists, then it will cause the irreversible cell injury, that is the necrosis. Then what will happen? The swelling of endoplasmic reticulum, loss of ribosomes, राइबोसोम क्लोज हो जाएंगे, लाइसोसोम रप्चर हो जाएंगे, ठीक है, ब्लेबिंग हो जाएगी, माइलिन फिगर्स अपीयर होना शुरू हो जाती है, माइलिन फिगर्स अपीयर होना शुरू हो जाती है रिवर्सिबल सेल इंजरी में, न्यूक्लियर कंडेंसेशन एंड swollen mitochondria with amorphous densities, fragmentation of cell membrane and nucleus. इसमें apoptosis भी हो सकता है, necrosis भी हो सकता है irreversible. And this is the picture of necrosis. You can see reversible and irreversible cell injury. What will happen in reversible cell injury? Only cell function is reduced. Only cell function is reduced. No other changes are occurred. ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है और सेल फंक्शन रिड्यूस होता है. जबकि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल बायोकेमिकल अल्टरेशन होगी. बायोकेमिकल अल्टरेशन लीड टू सेल डेथ. के बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस जो कि हमें नहीं विजिबल नहीं होगी. देन लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंजेस और फिर ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. Morphology of cell and tissue injury. ठीक है, all stresses and noxious influences exert their effect first at the molecular. पहले किस पे होगा? Molecular और biochemical level पे होगा. Cell function is lost far before the cell death occurs and the morphological changes of the cell injury lag far behind both. Ultrastructural changes क्या हो सकती हैं सेल में? ठीक है, अल्ट्रेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अल्ट्रेशन हो सकती है. ठीक है, ब्लैबिंग हो गई, रिफ्लेक्टिंग डिस्टर्बेंसेस, आयन एंड वॉल्यूम रेगुलेशन. माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस, इसमें माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग वगैरह हो सकती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चेंजेस एंड न्यूक्लियर अल्ट्रेशन हो सकती है. Two patterns of morphological changes correlate with the reversible injury. Reversible injury में क्या कौन सी morphological changes हमें मिलेंगी? हम यहाँ पे आप लाइट माइक्रोस्कोप में हमें क्या मिलेगा? सेलुलर स्वेलिंग एंड फैटी चेन. ओनली सेलुलर स्वेलिंग एंड फैटी चेन. You can see this the cloudy swelling, cloudy appearance of the kidney cells. ठीक है, hydroxyl chain that reflect the failure of membrane ion pumps due to lack of ATP allowing cell to accumulate fluid. ठीक है, ये रिवर्सिबल सेल इंजरी. फैटी चेंजेस में क्या है? हमें फैटी लिपिड वैक्यूल्स मिल जाते हैं. ये अकर किसमें होती है? हाइपोक्सिक या वेरियस फॉर्म्स ऑफ टॉक्सिक इंजरीज में होता है. मेटाबॉलिक इंजरीज में, डायबिटीज, मेलाइटिस और ओबेसिटी में क्या होता है? हमें वैक्यूल्स, लिपिड वैक्यूल्स मिलते हैं साइटोप्लाज्म. रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा? हमें सेल की स्वेलिंग मिलेगी, फैटी चेंजेस मिलेंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लैबिंग हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग हो जाएगी, डायलिटेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, इओसिनोफिलिया हो जाएगा. And the irreversible cell injury type is necrosis. What is the necrosis? Necrosis refers to series of morphological changes that accompany cell death. These are the necrosis not is a it's a process that occur that contains series of morphological changes. में changes की series चल रही है. ये process, इस process को, इन changes को हम series of morphological changes जो हो रही हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? necrosis. जिसका एंड रिजल्ट क्या होगा? डेट अकम्पनी सेल डेथ. जो चेंजेस आएंगी लार्जली रिजल्टिंग फ्रॉम द डिग्रेडेटिव एक्शन ऑफ द एंजाइम्स ऑन लीथली इंजर्ड सेल्स. दैट आर सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन लीथली इंजर्ड सेल्स. उसे हम क्या कहेंगे? What we will call it? We will call it necrosis.
enzymes responsible for digestion of the cells are derived from जो enzymes जो responsible for digestion of cells ये from derived from the these can be lysosomes of the dying cell itself. सेल्स जो डाई कर रहा होगा उसके लाइसोसोम्स होंगे, लाइसोसोम्स ऑफ ल्यूकोसाइड। जब भी कोई सेल डेथ हो रही होगी, सेल के फ्रेगमेंट्स रिलीज हुए हैं, ल्यूकोसाइड्स आ गए, इन्फ्लेमेशन वगैरह का की डेटा रिक्रूटेड एज ए पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी एक्शन, तो उनके भी लाइसोसोम्स हो सकते हैं, वहां से भी एंजाइम्स होंगे, वो डाइजेस्ट करेंगे सेल्स को। तो नेक्रोसिस क्या हुआ? सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर इन ए लीथली इंजर्ड फेट डेथ। What will be morphological alteration we will see in the necrosis? We will see increased eosinophilia, ठीक है, pink staining नजर आएगी हमें, न्यूक्लियर चेंजेस हमें वायलेंट फिगर्स नजर आएंगी, ठीक है। जबकि हमें जो नजर आया था इरिवर्सिबल सेल इंची में, हमें क्या नजर आया था? सेलुलर स्वेलिंग नजर आ रही थी, फैटी चेंजेस नजर आ रही थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग, माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग नजर आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे हमें इओसिनोफिलिया नजर आ रहा है, पिंक स्टेनिंग, ठीक है। माइलिन फिगर्स हमें नजर आ रही है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यूक्लियर चेंजेस में क्या होता है? सी पैटर्न हो सकते हैं, कैरियोलाइसिस, destruction of cell, nuclear pycnosis, that is the nuclear shrinkage and increased pedophilia, या karyohexis। karyohexis क्या है? फ्रेगमेंटेशन एंड डिसोल्यूशन। इसके अलावा हमें क्या मिलेगा? मॉर्फोलॉजिकल अल्टरेशन है, माइलिन फिगर्स, इओसिनोफिलिया, न्यूक्लियर चेंजेस एंड ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन एंड लीकेज एंड एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेलुलर कॉन्टैक्ट। पैटर्न ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस is 3 to 4 टाइप्स। आप लोगों को बता देती हूँ। कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज अ फॉर्म ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस इन विच कंपोनेंट सेल्स आर डेड बट द बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका प्रिजर्व रहेगा। सेल के जो कंपोनेंट सेल्स है वो डेथ है, मगर बेसिक स्ट्रक्चर उसका प्रिजर्व रहता है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफार्क्ट इन ऑल सॉलिड ऑर्गन्स। सब सॉलिड ऑर्गन्स में जो भी इन्फार्क्शन होगी, लाइक हार्ट, लीवर, किडनी, स्प्लीन, ठीक है, एक्सेप्ट ब्रेन, ठीक है। उसमें क्या होता है? इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस में होता है दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर जो है दैट विल बी रिमेन प्रिजर्व। मोस्टली क्या होता है? या तो फिर इस्केमिक नेक्रोसिस, और सॉलिड ऑर्गन्स में जब भी होगा कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस शो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। इट इज सीन इन, इसमें मोस्टली बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन भी साथ हो जाते हैं। सीन इन फोकल बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन बिकॉज माइक्रोब्स स्टिमुलेट द accumulation of inflammatory cells and the enzymes of leukocytes digest the tissue. This necrosis is a characteristic of hypoxic death of cells within the CNS। CNS में हो रहा है, ठीक है, में क्या हो रहा है? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है, एसोसिएटेड विद सपोरेटिव इन्फ्लेमेशन, पस वगैरह होगी, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर का मेंटेन नहीं रहेगा, जबकि हम कोगुलेटिव नेक्रोसिस में गए थे इटसेल्फ स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। एरिया इसमें क्या होगा? सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का हो जाएगा, लिक्विड ही, लिक्विड विच में फॉर एग्जांपल जैसे एक्सेसिव, ये किन में होता है? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ब्रेन में। An infarct in the brain showing dissolution of tissue. Liquid is आपको नजर आ रहा होगा, semi solid। Caseous necrosis encountered most often in focus of tuberculosis infection। It is characterized by, इसमें क्या होगा? cheesy yellow white appearance। नेक्रोटिक एरिया में क्या होगा? cheesy yellow white appearance। आप कहीं भी cheesy yellow white appearance वगैरह दी हुई हो सिनेरियो में आप लोगों को, या फिर कोई लॉन्ग हिस्ट्री हो जिसमें उससे फीवर वगैरह की दी हुई हो, मतलब कि लो ग्रेड फीवर की, और साथ चीजी येलो व्हाइट अपीयरेंस वगैरह दी हो, तो दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में कौन सी नेक्रोसिस हो रही है? केशियस नेक्रोसिस। यू कैन सी दिस इज चीजी येलो व्हाइट अपीयरेंस। फैट नेक्रोसिस occurs in the areas where fats are present, ठीक है। refer to focal areas of fat destruction। फैट डिस्ट्रक्शन होगी, कैसे होता है? टिपिकल रिजल्टिंग पैंक्रियाज में होता है। कैसे होता है? टिपिकल रिजल्टिंग फ्रॉम रिलीज ऑफ एक्टिवेटेड पैंक्रियाटिक लाइपेजेस इनटू द सब्सटेंस। जो पैंक्रियाज के लाइपेज होते हैं वही क्या करते हैं? फैट डाइजेशन वगैरह कर देते हैं, फैट नेक्रोसिस कराते हैं एंड द पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। इसमें होता है पैंक्रियाटाइटिस में। यहाँ पे आपको चौकी अपीयरेंस नजर आ रही होगी, ये ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम। तो
फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस किसमें होता है? वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर. स्पेशल फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस यूजुअली seen in the immune reactions involving the blood vessels. आप लोगों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एसिडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, फैट नेक्रोसिस किसमें हो रहा है? पेंक्रियाज में हो रहा है, पेंक्रियाटिक लाइपेजेस एंजाइम में, पेरिटोनियल कैविटी में होता है, ठीक है, लाइपेजेस वगैरह हो जाते हैं. टिशियस नेक्रोसिस किसमें होता है? लंग्स में हो रहा है, ठीक है, ट्यूबरकुलस में होता है. उसकी क्या अपीयरेंस होती है? चीजी वाइट अपीयरेंस होती है, ठीक है. लेकिन इफेक्टिव नेक्रोसिस किसमें होता है? ब्रेन में होता है, लिक्विडी सेमी सॉलिड ग्रॉस अपीयरेंस होगी. इसके अलावा कोगुलेटिव नेक्रोसिस सॉलिड ऑर्गन्स में होगा, ठीक है. स्ट्रक्चर इटसेल्फ अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रखेगा. फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस किसमें हो रहा है? ब्लड वेसल्स के अंदर हो रहा है, ठीक है. यूजुअली सीन इन द इम्यून रिएक्शंस के अंदर. Gangrenous necrosis. This is not distinctive pattern of cell death. It is usually applied to the limb, generally to the lower limb. लिम्स में भी हो सकती है, लोअर लिम्स में भी हो सकती है, ठीक है. गट्स वगैरह में भी हो सकती है. And that has lost its blood supply, hypoxia, ischemic injury में involving multiple tissue layers. ये टाइप कौन सी हो सकती है? वेट गैंग्रीन और ड्राई गैंग्रीन होती है. वेट गैंग्रीन अगर इन मॉइस्ट एरियाज, वेट गैंग्रीन के नेचर में बॉवल्स में, माउथ में, ठीक है. characterized by numerous bacteria. It is characterized by एक तो बैक्टीरिया होगा, साथ सपोरेटिव इन्फ्लेमेशन और सपोरेटिव इन्फेक्शन वगैरह भी हो रहा होगा, ठीक है, वेट गैंग्रीन में. ड्राई गैंग्रीन कौन से होते हैं? मोस्टली डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब ड्यू टू इस्कीमिया. इस्कीमिया की वजह से डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब जहाँ की ब्लड सप्लाई कम हो जाए, इस्कीमिया वगैरह हो जाए, ठीक है. टोज में होती है, फीट्स में, ठीक है. एलडी पेशेंट में, एथेरोस्क्लेरोसिस पेशेंट्स में के अंदर टोज या फीट में होती है. बट इट इज ड्यू टू आर्टीरियल अक्लूजन. इस वजह से होती है आर्टीरियल अक्लूजन. देयर इज लिमिटेड putrefaction and bacteria fail to survive. पहली इस्कीमिक इंजरी हुई होती है, यहाँ पे वैसे ही आर्टियल अक्लूजन हो गई, ठीक है, ब्लड सप्लाई कम हो गई, तो प्यूट्रिफिकेशन वैसे ही कम होती है और बैक्टीरिया फेल टू सर्वाइव. जबकि मॉइस्ट एरियाज जहाँ पे वेट गैंग्रीन हो रही है, वहाँ पे वैसे भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिला हुआ है, तो वहाँ पे कैरेक्टराइज बाय न्यूमरस बैक्टीरिया, वहाँ पे साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ ड्राई गैंग्रीन. यू कैन सी. एक और चीज है, आप लोगों को नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस में डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए, ठीक है. दैट कैन बी कमिंग यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस. नेक्रोसिस, व्हाट इज दिस? इज एक्सीडेंटल सेल डेथ. दीज आर द सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. नेक्रोसिस इन लिटली इंजर्ड सेल, सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. लिटली इंजर्ड सेल की जो चेंजेस आ रही हैं उसमें जो डेथ हो रही है, दैट इज नेक्रोटिक. इट विल ऑलवेज बी एक्सीडेंटल. Apoptosis क्या है? That is programmed cell death. Both are types of irreversible cell injury. Both are types of irreversible cell injury. Usually affects necrotic है, usually affect large area of contiguous cells. क्यों large area? क्योंकि cellular enzymes leak out हो जाते हैं. Cellular enzymes जो है leak out होते हैं, वो digestion start करते हैं, ठीक है. तो साथ वाले cells की भी वो डाइजेशन वगैरह करेंगे, तो इस तरह सेलुलर एंजाइम लीक हो रहे हैं और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, ल्यूकोसाइड्स आ रहे हैं, उनके लाइसोसोम्स हो रहे हैं, तो यूजली इफेक्ट्स लार्ज एरिया या लार्ज एरिया को अफेक्ट करता है. जबकि अपोप्टोसिस में क्या हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन हो रही है, उसमें यूजली इफेक्ट्स स्कैटर्ड इंडिविजुअल सेल्स. जिस तरह की अपोप्टोसिस हो रही है सिर्फ उसे ही इन्वॉल्व करेगा. नेक्रोसिस में क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? सेल्स एंड ऑर्गेनेली सेल्स भी स्वेल हो रहे हैं, ऑर्गेनेली स्वेल हो रहे हैं. जबकि अपोप्टोसिस में सेल्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं. नेक्रोसिस में क्या? कंट्रोल ऑफ इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट इज लॉस्ट, सेल रप्चर एंड स्पिल कंटेंट. जबकि इसमें क्या होता है? कंट्रोल ऑफ इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट मेंटेन रहती है. साइटोप्लाज्म पैकेज एज ए अपॉप्टोटिक बॉडीज. साइटोप्लाज्म में क्या होता है? अपॉप्टोटिक बॉडीज बन जाती है, फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, छोटी छोटी बॉडीज बन के बाद में लाइसोसोम उन्हें डाइजेस्ट करते हैं. नेक्रोसिस में इंफ्लेमेशन प्रेजेंट होती है, अपॉप्टोसिस में इंफ्लेमेशन कभी भी प्रेजेंट नहीं होती. बोथ आर टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी. आप लोग देख सकते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी की. नेक्रोसिस में स्वेलिंग हो रही है, मेम्ब्रेन ब्लड बन रहे हैं, ये प्रोग्रेसिव इंजरी हुई, माइलिन फिगर्स बन गई, ब्रेकडाउन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ऑर्गेनेलिस की हुई, न्यूक्लियस लीकेज, कंटेंट्स लीक होते हैं, ठीक है. दैट विल स्टार्ट द ऑटो डाइजेशन एंड इट विल प्रोड्यूस द इन्फ्लेमेशन. बट अपोप्टोसिस में क्या है? कंडेंसेशन, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, सारे श्रिंक हो रहे हैं, मेम्ब्रेन
ब्लैब्स तो बन रहे हैं मगर सेलुलर फ्रेगमेंटेशन, इसमें फ्रेगमेंटेशन हुए अपोप्टोटिक बॉडीज बन गई। देन व्हाट विल हैपन, फैगोसाइटोसिस ऑफ अपोप्टोटिक बॉडीज और फ्रेगमेंटेशन, इसमें इन्फ्लेमेशन बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच। मैं कल आप लोगों को कुछ सिनेरियोस वगैरह दूंगी रिलेटेड टू सेल इंजरी, एक पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन में, मेटास्टैटिक एंड पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, उससे रिलेटेड भी होंगे सिनेरियोस। 2-3 सिनेरियोस कल हमने करने हैं। काइंडली आप लोग अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक्स वगैरह साथ रख लीजिएगा। बेशक मैं आप लोगों को सिनेरियोस बता दूंगी और थोड़ा सा अपॉप्टोसिस को डिस्कस करने के बाद हम लोग सारे सिनेरियोस भी करेंगे रिलेटेड टू सेल इंजरी। थैंक यू सो मच।